Hello 11th class students, welcome to our mathematics class students. Today we will start our exercise 3.11 in which we will discuss the relation between the sides and trigonometric function of the angles of a triangle. Students, if we are given a triangle ABC, then the sides opposite to the angle A is represented by small a and side opposite to angle B represented by small b and side opposite to angle C is represented by small c. These angle represented by capital letter A, B, C and the sides A, B, C represented by small letters. These are called the elements of the triangles. Now the relation, some of the relations between these angles, sides and trigonometric function are given by first some formulas. Our first formula is the sine formula. Sine formula name suggests it gives the relation between the sides and the angles and sine trigonometric function. The relation, the sine formula says that a upon sine a equals to b upon sine b equals to c upon sine c. That is the ratio between the side and the sine of the sine function of the angle A, that is the angle and its opposite side. ठीक है, side and the sine of the opposite angle of this side, इनका रेशियो हमेशा सेम होता है for a given triangle. This is the statement of sine formula. A upon sine A equals to B upon sine B equals to C upon sine C. अब इसी से हमारी टू कोरोलरी निकल के आती हैं. देखिए, अगर हम इसको पुट कर दें आ कांस्टेंट के से, देन द इक्वेशंस विल बी सॉल्व टू बी a इक्वल्स टू k sin a, b इक्वल्स टू k sin b and c इक्वल्स टू k sin c. And also if we are to find the value of sin a, then this k will be transposed to other side and sin a to the other side. We will have sin a equals to a upon k, sin b equals to b upon k and sin c equals to c upon k. So using these formulas, we can change the side to the sine of the any of the angle and sine of the angle to side of the angle. Okay, so using this formula we can change the angle and side, sine of the angle and side, एक दूसरे के अंदर हम इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं. सेकेंड फॉर्मूला इज द कोसाइन फॉर्मूला विच से cos c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab. यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, लर्न करते वक्त यहाँ पे अगर हम एंगल c ले रहे हैं तो माइनस b इसकी अपोजिट साइड c ही होगी. अदर टू साइड्स ऐड हो जाएंगी, अदर टू साइड्स का स्क्वायर ऐड हो जाएगा और जो एंगल हम यहाँ ले रहे हैं उस एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा. सिमिलरली कोस बी को अगर हम लिखना चाहें, दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac. सिमिलरली कोस a विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. Now our third formula is the projection formula. Projection formula says that b cos c plus c cos b. इसमें अगर देखिए b cos c, c cos b, इसको हम रिलेट करते हैं टू द साइड a. b cos c plus c cos b equals to a. Similarly c cos a plus a cos c equals to b. देखिए जो भी हमारा साइड नहीं आई इसमें वही आपकी इधर आएगी. ये लर्न करने का तरीका है. a cos b plus b cos a will be equals to c. This is our projection formula. Now last formula is the Napier's analogy. Generally ये आपकी यूज नहीं होती बट फॉर्मूला हम कर लेते हैं. टेंजेंट ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2. अब अगर हम दूसरे एंगल्स यहाँ यूज कर लें, टेंजेंट b माइनस सी बाई 2. देखिए यहाँ पे a और b था तो यहाँ पे भी इसकी अपोजिट साइड a और b ही यूज हो रही थी और एंगल आपका जो रिमेनिंग एंगल बच गया वो आ रहा था. तो यहाँ देखिए b और c है तो यहाँ पे भी b c आएगा. b माइनस सी अपॉन b प्लस सी. यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल है b c है तो थर्ड कौन बचा a, कॉट a बाई 2. ठीक है, इसी तरीके से थर्ड हम लिख सकते हैं टेंजेंट c माइनस a बाई 2 विल बी इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट
b by 2. Now using these formula we will discuss our simplify our exercise question. Our first question is, in any triangle ABC, if A equals to 2, B equals to 3 and angle B equals to 90 डिग्री, show that sin A equals to 2 by 3. तो obviously यहाँ पे आपको साइड्स दी हैं और साइन ऑफ द एंगल, ठीक है. तो ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है साइड्स को और साइन ऑफ द एंगल को? साइन फॉर्मूला. सो विल यूज आवर साइन फॉर्मूला. ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी. ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है. साइन ए इक्वल्स टू 2 अपॉन 3. साइन बी यहाँ पे हम पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ नहीं सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. साइन ए तो हमें शो करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो यहाँ से देखिए साइन ए विल क्रॉस मल्टीप्लाई ए साइन बी इक्वल्स टू 3 साइन ए. तो यहाँ से देखिए 2 साइन 90 डिग्री इज 1. वी विल हैव हेयर 2 by 3. साइन ए विल बी 2 by 3. Now our third part of this question is, if angle A equals to 30 degree and B ratio C is equals to 2 ratio root 3, show that angle B is equal to 90 degree. तो obviously यहाँ पे आपको साइड्स दे रखी हैं और एंगल गिवन है, ठीक है. तो सिंपल एक एंगल हमें गिवन है, तो केवल एक एंगल को कौन रिलेट कर रहा है? केवल एक एंगल और अदर सभी साइड्स को रिलेट कर रहा है हमारा कोसाइन फॉर्मूला. सो विल यूज हेयर कोसाइन फॉर्मूला. तो यहाँ पे एंगल आपको ए गिवन है, सो हम कोस ए पुट करेंगे. कोस ए विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. सो ए की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री. बी रेशो सी इज इक्वल टू 2 रेशो 3. सो विल टेक अ वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल एक्स. कॉमन रेशियो हमने अगर x मानते हैं, b विल बी इक्वल्स टू 2x एंड c विल बी रूट 3x. वी विल पुट हेयर द वैल्यूज. cos 30 इक्वल्स टू दिस. cos 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 by 2. विल पुट हेयर एंड गेट अ इक्वेशन इन x. नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू x. ये रिलेशन आपका आ गया. And now we can put this value of x in b. b equals to 2x. we have find that means b क्या आ गया आपका 2a, ठीक है. x की वैल्यू a आ चुकी है, वो हम b में पुट करेंगे. विल गेट b इक्वल्स टू 2a एंड c में पुट करेंगे. विल गेट c इक्वल्स टू रूट 3a. साइन फॉर्मूला से हम शो कर सकते हैं a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी. जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए a अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू b अपॉन साइन b. b की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है? 2a. विल पुट हेयर 2a एंड इन दिस वे यू गेट साइन b इक्वल्स टू 1 एंड साइन इज 1 at 90 डिग्री. सो 1 कैन बी रिटन एज साइन 90. नाउ b विल बी इक्वल्स टू, आफ्टर कंपेयरिंग द एंगल्स, b विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. And the second question, in any triangle ABC prove these. तो यहाँ पे देखिए आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. या तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें. हेयर वी आर हैविंग कोस b प्लस सी बाय 2. b प्लस सी बाय 2 का क्या लिख सकते हैं हम? 180 माइनस a. सो हेयर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाय, तो वो क्या बनेगा? साइन a बाय 2. यहाँ से भी हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं. a विल बी इक्वल्स टू k साइन a, ठीक है. कोस इस तरीके से b और c की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. k साइन b एंड c की वैल्यू k साइन c पुट कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल open the formula sin c plus sin d and you will see that the both hand side get equal. In the similar way our third question can also be solved. Look here, we are to prove sin b minus c by 2 equals to b minus c by a cos a by 2. जैसे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे सेम वही मेथड से हम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? साइन फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से b माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेंगे. सिमिलरली यहाँ से भी हम b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे साइन फॉर्मूला यूज़ करके. यहाँ से देखिए a विल बी इक्वल्स टू k साइन a, b विल बी इक्वल्स टू k साइन b, c विल बी इक्वल्स टू k साइन c. विल पुट दीज वैल्यू इन
b minus c upon a. And after solving you will see that देखिए यहाँ पे हम साइन b माइनस साइन c, वी कैन पुट द फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus c by 2 here. And also in the denominator we are having sin a which can be resolved to sin a by 2 cos a by 2. अब देखिए b plus c हमारा ट्रायंगल है इन विच वी विल हैव a plus b plus c 180. सो b plus c कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस a. तो यहाँ से हम इसे क्या खोल देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट हेयर कोस 90 डिग्री माइनस a by 2 दैट विल बी इक्वल टू साइन a by 2. सो यहाँ से हमारे पास साइन a by 2 गेट कैंसल्ड. फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वी विल हैव साइन b माइनस c by 2 अपॉन कोस a by 2. After cross multiplying, cos a by 2 will get other side and a to the other side. So this is our result which is to be proved. In the 7th question we are to prove in triangle ABC a square upon sin a equal to sin b minus c into sin b minus c plus b square upon sin b sin c minus a plus c square upon sin c a minus b sin a minus b इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे भी देखिए हमें a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी दिख रहा है. तो ऑब्वियसली हम साइन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर को के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सी स्क्वायर को के स्क्वायर साइन स्क्वायर से. विल पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हेयर यूजिंग द साइन फार्मूला. तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला लगाने के बाद फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन ए गेट कैंसल्ड. आफ्टर दैट वी विल हैव हेयर के स्क्वायर गेट कॉमन 2 साइन ए साइन बी माइनस सी. तो यहाँ से देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि यहाँ से हमारे पास 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज इक्वल्स टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी. ओके वो हम यहाँ लगा देंगे. आफ्टर दैट यू कैन चेक दैट जब हम सभी के ऊपर ये फॉर्मूला ओपन करेंगे ऑल द टर्म्स गेट कैंसल्ड एंड हेयर वी आर हैविंग द 0. व्हेन वी मल्टीप्लाई के स्क्वायर बाय 2 0 वी गेट द 0 दैट इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. इन द 8th क्वेश्चन वी आर गिवन इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए. देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ गिवन है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी. वी आर टू यूज दिस थिंग. साइन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी एंड सी इक्वल्स टू के साइन सी. वी कैन यूज दिस हेयर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी. तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. साइन स्क्वायर बी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. साइन स्क्वायर सी सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. 1 अपॉन के स्क्वायर गेट कॉमन and cancelled from the both side and we are having a square equals to b square plus c square. तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, a is the side bc and b is the side ac and c is the side ab. तो यहाँ से देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर which is true according to the Pythagoras theorem, and in this way we can which is applicable only, this result is only for the right angle triangle. That means this triangle ABC is a right angle triangle and the angle opposite to this side is 90 degree, that is angle A is 90 degree. In the 9th question we are given in triangle ABC we are to prove BC cos A plus CA cos B plus AB cos C equals to this. तो यहाँ से देखिए हम दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से C कॉमन आ रहा है. वी विल हैव B cos A plus A cos B. देखिए ये हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया, A cos B plus B cos A that is equals to C. So we can put here C. We will have here C square and here we are having A B cos C. यहाँ पे देखिए हम आगे क्या कर सकते हैं, ए बी कोस सी
यहाँ पे cos c की जगह हम कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं. विल हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab गेट कैंसल्ड. Now we will have here c square plus half of a square plus b square minus c square. After solving we have the right hand side. In the 10th question again we are to prove 10a upon 10b equals to this. तो यहाँ पे देखिए हम पहले 10 को sin upon cos में चेंज कर लेंगे. After that we can put the sin formula and the cosine formula and have the right hand side. In the 11th question we are to prove b square minus c square upon a square into sin 2a. इस चीज़ सभी लेफ्ट हैंड साइड को हमें इक्वेट करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है. तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, या बी सी ए इन सभी की वैल्यूज़ हम कहाँ से निकालेंगे, साइन फार्मूला से निकालेंगे. तो हम यहाँ पे साइन फार्मूला ही लगाएंगे. बी सी ए की वैल्यूज़ हम निकालेंगे साइन फार्मूला से और वो हम यहाँ पुट करेंगे. देखिए साइन फार्मूला हमारा ये साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू आपकी आ गई है. ऑल्सो फ्रॉम कोसाइन फार्मूला से भी हम क्या निकाल सकते हैं, कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. अब देखिए हमने क्या किया है, हमने एक टर्म सॉल्व कर ली. ये जो आपको गिवन लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं. हम पहले एक टर्म को सॉल्व करते हैं. बी माइनस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a. हमने इसे तोड़ा. बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन साइन 2a कैन बी रिटन एज 2 साइन ए कोस ए. अब देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन के, और कोस ए पे हम लगाते हैं कोसाइन फॉर्मूला. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. अब कैंसिल आउट करने के बाद वी विल हैव 1 अपॉन के ए बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दैट मीन्स देखिए जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो फॉर्मूला यूज करके वी विल हैव हेयर बी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. So this is our first term of the given left hand side of the question. इसी तरीके से हम जो अदर 2 टर्म्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे सेम जब हम जनरलाइज कर देंगे इस फॉर्मूला को, तो देखिए सेकेंड टर्म में हमारे पास यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b है. ये तो आपकी कॉमन चीज़ है, सारी चीज़ें आएंगी 1 अपॉन के ए बी सी. यहाँ पे देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था तो यहाँ पे बी टू दी पावर सी टू दी पावर था, और यहाँ ए साइन 2a था तो यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था. ठीक है, तो यही जनरलाइज हम करेंगे इसके साथ. देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ सी टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 माइनस देखिए यहाँ एंगल बी है तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर इंटू जो आपकी सेम टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सिमिलरली थर्ड टर्म को भी हम जनरलाइज करते रख सकते हैं, वो भी सोल्व होके क्या आएगा 1 अपॉन के ए बी सी इंटू ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तीनों टर्म्स की वैल्यू जब हम यहाँ डालेंगे सोल्व करेंगे तो देखिए अंदर जो आपका है वो सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. दैट विल आवर आंसर विल बी 0. दैट इज आवर राइट हैंड साइड. इन द 13th क्वेश्चन वी आर टू प्रूव ए कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू 2b प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाय 2. तो यहाँ पे देखिए हम क्या लेके चल सकते हैं, राइट, दोनों साइड को लेके चलते हैं हम. देखिए सॉल्व किया हमने 2b प्लस सी ए साइन स्क्वायर ए बाय 2. साइन स्क्वायर ए बाय 2 हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस ए बाय 2. 2 गेट कैंसल्ड. यहाँ से देखिए हमारे पास बचा b प्लस सी, 1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस b प्लस सी इंटू कोस ए. ये हम अदर साइड ले जाएंगे, ये वाला पार्ट b प्लस सी कोस ए अदर साइड ट्रांसपोज करेंगे तो विल हैव हेयर a cos b plus b cos a and a cos c plus c cos a. This is our projection formula. This is equal to c and this is equal to b. Now you can check that our left hand side and right hand side both are equal, which is true. Hence the result. In the 15th question we are to prove a cos b minus c by 2 equals to b plus c
साइन ए बाय 2। तो यहाँ से भी देखिए हम सीधा जो है b प्लस सी के लिए वैल्यू जो है सोल्व लेके करके चल सकते हैं। यूजिंग द साइन फॉर्मूला विल पुट b इक्वल्स टू k साइन b एंड c इक्वल्स टू k साइन c। तो ऑल्सो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड a है ये भी हम डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं। वी विल पुट हेयर k साइन a। तो ये जब हम b प्लस सी अपॉन a की वैल्यू आगे सॉल्व करेंगे, देखिए k एंड k गेट कैंसिल फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। वी विल हैव हेयर साइन a c प्लस साइन d। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन a प्लस c प्लस d बाय 2 इंटू कोस c माइनस d बाय 2। दैट आफ्टर सॉल्विंग साइन a 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2, 2 गेट कैंसल्ड। ऑल्सो यहाँ से b प्लस c को हम पुट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस a बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल ABC। यहाँ से देखिए आफ्टर सॉल्विंग वी विल हैव साइन 90 माइनस a बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू कोस a बाय 2। कोस a बाय 2 गेट कैंसल्ड फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। वी विल हैव साइन b माइनस c बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। that is b plus c upon a become equals to sin b minus c by 2 upon sin a by 2. After cross multiplying we will have b plus c sin a by 2 equals to a sin b minus c by 2. That is our required result we are to prove. Now I hope students you understood all the sum. So today your homework is to complete this exercise 3.11 in your fair notebook. Also you are to complete your NCERT exercise 3.6 in your assignment notebook. Thank you. Have a nice day.